Hi there guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here with another special video. So most of you know, I don't know if the YouTube fam knows or not, like the Instagram fam knows that I got married last week. I know it happened really quickly. Kya hua, kya nahi hua, how did it happen so quickly? What we went through, what actually happened, हम आपको सब कुछ बताएंगे. But today I have a very special guest for you guys with me. और इनको मैंने अपने चैनल पे कभी इंट्रोड्यूस आई हैव टॉक्ड अबाउट हिम बट आई हैवंट इंट्रोड्यूस्ड हिम ऑन माई चैनल. बट अब क्योंकि ज़िंदगी बदल गई है, सो नाउ यू गाइज आर गोइंग टू सी हिम ऑन माई चैनल विद मी ऑल द टाइम. सो if you want to know who that is, so you gotta wait, but let's get started. Okay guys, so I am back and this handsome man right here is my husband. Golden line. Do you get it? You're not allowed to do that. This was normal. Okay, so this man right here is my husband. His name is Hafiz Bilal Ahmed Khan Khazi. Hafiz. MashaAllah. Say MashaAllah. Are you okay? Video bana li? Okay, anyways. So, I've taken his name before on my channel. Most of you know him. If you don't know him, why don't you know him? Like, go and follow him right now. He is a gym freak, a fitness freak, unlike me. And I will mention his Instagram handle right here or right here, so you guys can go and follow him for fitness tips or health tips या जो भी आपको चाहिए, gym tips जो भी आपको चाहिए. This man has it all, so you guys should go and follow him. Watch his IGTV videos. He is a blogger in the making. Anyways, so आप लोगों ने Instagram पे हमसे बहुत सारे questions पूछे थे. I had sent you guys a poll. मैंने स्टोरी पे पोल लगाया था, आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे एंड नाउ वी आर हियर टू आंसर all of the questions, not all of them because some of them were shitty questions, but all of the good ones, like which ones we want to answer because this is my YouTube channel and that is my blog, so this is completely up to us. Just kidding. Anyways, so अब जो है हम start करते हैं वीडियो को and I have all of the questions. Bilal, would you like to say something? Hi. That was a lot. Anyways, so I have all of the questions right here. मैंने सारे screenshots ले लिए थे because you all know कि 24 घंटे के बाद story गायब हो जाती है. So I decided कि मैं इस तरह का कुछ करूँ and इसके बाद आपको बहुत सारा content मिलने वाला है with Bilal. We're gonna make a lot of videos. Secondly, if you guys want us to make vlogs, like व्लॉगिंग अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों मिलके करें, लेट अस नो, हम उसका चैनल बनाएंगे अलग से एंड वील व्लॉग ओवर देयर. सो इससे पहले कि इंट्रोडक्शन 2 घंटे का हो जाए, आई थिंक वी शुड जस्ट गेट स्टार्टेड बिकॉज आई ऑलवेज गेट कैरिड अवे. आई टॉक अ लॉट एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट मी. राइट बिलाल? लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ. We got engaged last year, जुलाई में and उसके बाद we couldn't actually decide कि हमें शादी कब करनी है because of a lot of reasons. and क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक नॉर्मल शादी कर रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत खर्चे होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं. so हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम क्या करें. so then we decided that we would get married in August, like इस साल का अगस्त जो अब आएगा. बट ड्यू टू सम रीजन्स हम लोगों ने उसको आगे शिफ्ट कर दिया नवंबर पे. सो वी हैड टू गेट मैरिड इन नवंबर, बट आई टेल यू गाइज व्हाट हैपेंड दैट वी गॉट मैरिड सो अर्ली. और हम लोगों की शादी के लिए हमें आई थिंक वी हैड लाइक 15 days, just 15 days to get done with everything and to shift to Lahore for me especially. So ये एक थोड़ा सा मैंने आपको एक आउटलाइन दे दी है. अब इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज how did you both plan quarantine wedding? ठीक है, अच्छा, quarantine wedding का हमारा obviously ये तो पता ही नहीं था पूरी दुनिया में किसी को भी कि कोरोना का सीन इतना ज़्यादा ऑफ हो जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें उस तरह नहीं कर सकेंगे जिस तरह हमने सोची थी पहले. मगर
बिकॉज हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था. इट वॉज क्वाइट ब्लर. वी डिड नॉट नो वट वुड हैपन इन द कमिंग ईयर या दिस ईयर, हाउ वुड दिस ईयर एंड. वी डिड नॉट नो दैट. सो वी डिसाइडेड कि चलो यार, वाई वेस्ट टाइम, लेट्स जस्ट गेट मैरिड, राइट? Right. Okay. So how did it happen basically? You need to tell people. नहीं, मुझे बताना है. हाँ. कैसे हुआ था? अब हो गया. He's still in that zone. हैं? Did we just get married? Like he asks me every day. This man asks me every day. लेकिन हुआ मेरी वजह से. हाँ, obviously I have to say that. मतलब one fine day हम लोग बैठ के सिर्फ ऐसी बात करते थे randomly and Bilal was like, यार अगर 2 हफ्ते में शादी कर लें तो कैसा होगा, क्या होगा, इज़ इट पॉसिबल? मैंने कहा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी फैमिलीज़ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इतनी जल्दी चीज़ें करना, बिकॉज ऑब्वियसली 2 सिटीज़ की बात थी. एक शहर में रहते होते तो चीज़ें फ़र्क होती. सो मैंने कहा बिलाल, जो सोच रहे हैं ना उसको सिर्फ सोचते रहें, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 2 हफ्ते में हम शादी कर लें. तो हम लोगों ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया. एंड देन I talked to my parents, he talked to his parents, and they agreed, and they were like, what? Because it was like unbelievable कि ये ऐसा कैसे हो सकता है. And then we got Alhamdulillah. नहीं, we got started with all the तैयारियां and everything, and then we got married. तो शादी हुई कैसे, ये बताएं. शादी वैसे ही स्टेज पे बैठ के. शादी ऐसे हुई कि हम गए कराची और हाँ, बट कैसे गए कराची, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है. यू हैव टू टेल देम एवरीथिंग बिकॉज दे नीड टू नो, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे who would want to get married and they would know our experience, right? नहीं, आप लोग अपनी पर्सनल कार के साथ मोटरवे के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं. हमारे लिए सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन वही था, क्योंकि कोरोना में अपनी सेफ्टी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे अम्मा अब्बा हैं वो काफ़ी एजेड हैं, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी था कि हम उनको किसी और ट्रांसपोर्ट के थ्रू ना लेके जा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बेहतर है कि आप बाय रोड ट्रैवल करें, क्योंकि प्लेन से आप जाएंगे या अगर आप ट्रेन यूज़ करेंगे तो वो सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ सकते हैं. सो अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है. यू कैन हायर कार्स एंड देन यू कैन गो लाइक यू डिड, राइट? हाँ. सो दिस इज़ हाउ दे केम टू लाहौर. एंड अब लोग बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा था, जो कि मैं ऐड करके बता रही हूँ इसी में, कि शादी हुई कहाँ. बिकॉज जो पिक्चर्स आपने इंस्टाग्राम पे देखी हैं, आपको लग रहा है कि किसी बैंक्वेट हॉल में शादी हुई है. किसी बैंक्वेट हॉल में शादी नहीं हुई, बिकॉज यू ऑल नो कि बैंक्वेट सारे बंद हैं. सो वॉट वी डिड वॉज, हमने बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बुलाए अपनी शादी में. एंड वॉट वी डिड वॉज कि हमने अपने रूफ टॉप के ऊपर पूरा सेटअप लगवाया एक इवेंट मैनेजमेंट वाले से बात करके, एंड ही मेड इट लुक लाइक अ बैंक्वेट हॉल. और इस तरह से, और हम लोगों की शादी में मास्क भी पहने हुए थे लोगों ने, सैनिटाइजर्स वो देयर वर डिसइंफेक्टिंग स्प्रेज जो हर वक्त स्प्रे हो रहे थे. सो हमने अगर ये चीज़ की है तो हमने इस चीज़ को माहौल के हिसाब से, कि आजकल जो इन्फेक्शन चल रहा है, आजकल जो वायरस फैला हुआ है, उसके हिसाब से चीज़ों को किया है. देन वी केम बैक टू लाहौर सेम वे रोड से, मतलब हमने ट्रैवलिंग की और लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ. मतलब 10 दिन गुजर चुके हैं. हाँ, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की तबीयतें ठीक है, मेरी भी तबीयत ठीक है. हम लोग, हाँ एग्जैक्टली, सबसे अच्छी बात ये है हम लोगों ने क्योंकि बहुत एहतियात से किया, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन दे ट्रैवल्ड फ्रॉम लाहौर टू कराची, उनके रिश्तेदार भी उनसे मिलने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो वन कैन नॉट स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम कमिंग एंड मीटिंग. इसलिए क्योंकि इतने दिन बाद ट्रैवल करके आते हैं तो मिलता तो है इंसान, बट उसको भी इतने तरीके से मिले, इतने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आई थिंक 10 डेज से ज़्यादा हो गया है. 10 डेज से ज़्यादा हो गया है. एंड अब जो है चीज़ें अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी की तबीयत कोई कुछ भी ऐसी हमने चीज़ नहीं सुनी है. एवरीवन इज़ फाइन, एवरीथिंग वेंट स्मूथली. ओके, सो ओके, आप ये बताएं कि कहाँ से रेडी हुई शादी पे, लाहौर कैसा लग रहा, ड्रेस डिटेल सब कुछ. अच्छा, आई टेल यू समथिंग. माई ड्रेस वॉज डिज़ाइंड पहले से, क्योंकि
और मैंने एक बहुत लो बजट ड्रेस डिज़ाइन किया बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ ऑन अ वेडिंग ड्रेस एंड बिलाल नोज दैट। तो मैंने अपना ड्रेस को डिज़ाइन किया था और वो ड्रेस जो है मैंने आई थिंक फरवरी में बनवा लिया था बिकॉज अप्रैल में हमारा निकाह भी प्लान हुआ हुआ था। सो इस वजह से वो ड्रेस मैंने वही पहना अपनी शादी पे। मैं खुद तैयार हुई बिकॉज आई वांटेड टू गो इन विद अ वेरी नो मेकअप लुक, वेरी सटल मेकअप लुक, जिस पे लोगों को काफ़ी शिकायत भी हुई कि आपने तो मेकअप भी सही से नहीं किया। आई डिड नॉट वांट टू गो हैवी एंड माई हस्बैंड ही डज नॉट लाइक अ लॉट ऑफ मेकअप लाइक आई एम वेयरिंग राइट नाउ। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी शादी पे इतना मेकअप भी नहीं पहना हुआ था गाइस। दिस इज अ लॉट ऑफ मेकअप आई एम वेयरिंग राइट नाउ फॉर हिम बट नॉट फॉर मी। तो इसीलिए इस तरह से हुआ। और लाहौर, आई लव लाहौर हमेशा से, लाइक नॉट बिकॉज ऑफ हिम और बिकॉज ऑफ हिज फैमिली और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या इस वजह से कि मैं शादियों के इधर आ गई हूँ। लाहौर मुझे हमेशा से बहुत पसंद है एंड या सारी डिटेल्स दे दी मैंने शायद। गुड ओके। सो योर एज डिफरेंस बिटवीन you and your husband? Tell them. What? Tell them your age. मेरी एज जो है वो 31 years old. 31 years old and I am 23. I know now people are going to come and say in the comments, oh my god, 23, you're right, you don't even. But still, I'm 23, he's 30, so 7 years का difference है हमारे। 7 years ही हुआ ना? 31. I'm about to. हाँ, 7-8 years या। अच्छा, बिलाल भाई ने आपको फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया था? उसके तो अभी तक गिफ्ट रैप भी रखा हुआ है ना? हाँ, वो तो मेरी वजह से रखा हुआ है ना, क्योंकि मैंने संभाल के रखा। नहीं, वो मैंने दिया इतनी मोहब्बत से जब तक हाँ भी नहीं हुई थी। हाँ, अच्छा हुआ क्या था कि ही केम टू मीट अस, हम मेरी फैमिली, क्योंकि ये अरेंज मैरिज है जो काफ़ी लोग यकीन नहीं करते लेकिन ऐसा है। एंड ही केम टू माई प्लेस एंड इन्होंने सोचा हुआ था कि अगर हाँ हो गई तो मैं गिफ्ट दे दूंगा, अगर ना हो गई तो मैं गिफ्ट नहीं दूंगा। नहीं तो भी दे दूंगा चलो याद रख लो, कोई बात नहीं। इट वॉज अ जिमी चू परफ्यूम, राइट? यस, या इट वॉज जिमी चू परफ्यूम। वो उन्होंने मुझे फर्स्ट गिफ्ट दिया था जब हमारी बात भी नहीं हुई थी, है ना? क्योंकि हमारी बात हाँ होने के बाद स्टार्ट हुई थी। या ओके। शादी पे इतनी खामोशी क्यों इंस्टा पे? मिस यू सो मच। अच्छा, नाउ आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज सो मेनी ऑफ यू वर लाइक, आपने शादी कर ली, आपने बताया नहीं। बहुत सारे मुझे अब्यूजेस भी मिले। आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइज नो अबाउट इट एंड आई फेल्ट रियली रियली बैड बिकॉज यू नो दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ इज सो प्राइवेट। आई हैव टू से दिस। पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ज़िंदगी में कुछ प्राइवेट नहीं होता। दैट इज़ नॉट ट्रू। कुछ चीज़ें बहुत प्राइवेट होती हैं, इंसान प्राइवेसी के साथ करना चाहता है। वी पर्सनली डिड नॉट वांट टू शो इट अप ऑन इंस्टाग्राम और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बिकॉज ईविल आई इज़ समथिंग एक्सट्रीमली रियल। तो हम चाहते थे जब चीज़ें हो जाएं तो फिर हम सबको अनाउंस करें उसके बाद। और ऑनेस्टली शादी की तैयारी में इतना इंसान के पास टाइम भी नहीं होता कि वो इंस्टाग्राम अपडेट करे या यूट्यूब अपडेट करे बिकॉज 15 दिन के नोटिस पे शादी होना एंड देन गेटिंग थिंग्स। हम अपने कुछ दोस्तों को नहीं बता सके, मतलब जिनसे हम डेली बेसिस पे टच में नहीं थे। तो ऐसा नहीं हो सका कि हमने याद रखा कि यार इस दोस्त को कॉल करें और बता दें। बिकॉज वी डिड नॉट हैव टाइम बिकॉज मेरा सारा सामान हैड टू शिफ्ट टू लाहौर। आई हैड, मतलब इट्स लाइक आप एक घर से दूसरे घर पूरा शिफ्ट कर रहे हैं एंड नॉट इवन द सेम सिटी। सो इट वॉज वेरी टफ फॉर बोथ ऑफ द फैमिलीज क्योंकि यहाँ सामान आके सेट होना था। यहाँ बिलाल हैड टू सेट अप द रूम एंड एवरीथिंग, जो कि हम रूम टूर भी बहुत जल्दी देंगे आपको इंशाल्लाह। लड़के का रूम से फिर एक मियां बीवी के रूम पे शिफ्ट होने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। मुझे पता कुछ करना पड़ता है यार, सीरियसली, है ना बिलाल? सिंपल शादी लोग इसे कहते हैं, ये भी सिंपल नहीं होती। ये भी सिंपल नहीं थी एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट अप इज घर वालों को छोड़ के कैसा लग रहा है? ये मैं बताता हूँ। दिन में 3-4 दफा मैडम बैठे बैठे रोना शुरू कर देती हैं। फिर जब पूछो तो कोई जवाब भी नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी। मैं फजूल में सारा दिन सॉरी कहता रहता हूँ, बेबी आई एम सॉरी, बेबी। You don't say that. You don't say sorry all the day. और एक दिन जब मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा यार चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता है, तो और मैं अपने बाल उस टाइम सही कर रहा था, तो मुझे आगे से बातें सुनने को मिल रही हैं कि पहले तुम अपने बाल बना लो फिर मुझे आगे चुप करा लेना। यार मतलब एक बंदा दिन में 3-4 दफा चुप कराए इतने प्यार से, बेबी बेबी। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह ताला जल्दी दुआ के अम्मा अब्बा यहाँ पर जो है वो आएंगे। हाँ, मगरमच्छ के।
एनीवेज, सो आप इस्लामाबाद आ रही हैं? नहीं, हम अभी इस्लामाबाद नहीं आ रहे। हम आएंगे इंशाल्लाह जब हम लोगों की थोड़े से हालात बेहतर हो जाएंगे, कोरोना दफ़ा हो जाएगा इधर से, फिर हम लाजमी कोशिश ज़रूर करेंगे आने की। Were you engaged for a long time? No, we were engaged for 11 months and then we got married. Alhamdulillah. That's so cute. Do you guys feel change in your life after marriage? You need to answer this question. मुझे नहीं, हम लोगों को क्या डिफरेंट फील हो रहा है शादी के बाद? हाँ, बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। मतलब You better say that. मतलब पहले मेरे कमरे में रात को लीचीज कोई नहीं खाता था बेड पे बैठ के। This guy has this problem. I don't know क्या बोलता है उसको? I think OCD कहेंगे इसको। I don't know. खैर जो भी होता है, अगर बिलाल खान के हाथ पे कोई चीज टच हो जाए खाने की, then he's like, I need to wash my hands. I need to. मैंने यार relax, it's just food. और ये मुझे तब पता चला जब मैंने पहली दफा Pringles खाए। अब मैं Pringles I am raw AF. मैं Pringles नहीं, Pringles खाने के बाद किसी ने AC को चेंज किया उन्हीं हाथों से। जब मैंने पूछा कि हाथ तो धो लेना था, तो बेबी ने कहा मैंने अपने ट्राउजर से साफ कर ली। ऐसे ही आ रहा है कोरोना, ऐसे ही आ रहा है कोरोना Pringles से नहीं आ रहा है, कोरोना हाथ ना धोने से आ रहा है। तो ये है मेरी दर्दनाक सीरियसली। एनीवेज, ये चेंज इनको महसूस हुआ शादी के बाद, राइट? नहीं गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मेरी रिस्पॉन्सिबल सी बीवी है, रात को उठ के जाती है, मुझे प्रोटीन शेक बना के लाके देती है। मतलब क्या रोना तो नहीं आ रहा। साथ में अपनी लीचीज भी लानी होती है ना नीचे से। दुआ को मुझे नहीं पता था, मुझे सीरियसली शादी से पहले ये नहीं पता था कि दुआ को लीचीज इतनी ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा पसंद है कि बस मेरे बाद अगर उसे शायद कुछ पसंद है तो वो लीचीज है। इतनी दफा आपने कह दिया, इतनी नजर लग जाएगी ना, मैं लीचीज खाना चाहूंगी। माशाल्लाह, अभी मैं जाके बेबी के लिए 4 किलो लेकर आता हूँ। एनीवेज, अच्छा, आपकी एज का हमने आंसर कर दिया है। फर्स्ट प्लेस यूड लाइक हिम टू टेक यू इन लाहौर? कारफोर। रोजाना जाना होता है। ठीक भी बेबी कारफोर चले, बेबी अल्फता ले जाओगे आज मुझे? 2 जगह। दुआ सिद्दीकी इतनी खुश होती हैं इन 2 जगहों पे जाके जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि वहां फ्रेंच चीज के लेस होते हैं। नहीं, because of अल्फता, because of the makeup, you know that. Okay, makeup. Why would you say such? लेकिन नहीं, उससे पहले आपको वो फूड फैक्ट्री भी लेनी थी ना। अल्फता ले चले बेबी, वहां से मुझे फूड फैक्ट्री मिल जाएगी। फूड फैक्ट्री मैंने दिला दी समहाउ किस कहीं और ले जाके। लेकिन अब आज पता नहीं आज क्यों जाना था अल्फता। आज सुबह उठ के तुमने मुझे कहा अल्फता जाना है। मेकअप लेने का। ओके, कोई बात नहीं, कम हो गया। I hate you. अच्छा, Anyways, कोई टिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए? मेरा ख्याल है आपका रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। लाइक आई मतलब बहुत सारे लोग ना हमें भी शुरू में कहते थे, ये दुआ और मैं इस चीज के बारे में बात करते हैं कि नहीं यार, मतलब सब कुछ नहीं शेयर कर देना चाहिए। तुमने ये भी बता दिया बिलाल को, ये बिलाल को कहते हैं यार दुआ को ये भी बता दिया, ये नहीं बताना चाहिए। कुछ चीजें अपने पास रोक के रखते हैं। यार ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि शादी के बाद मेरा ख्याल है आप दोनों एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन आप हर वक्त एक साथ हैं। मतलब हर चीज में आप लोगों की जिंदगी में एक दूसरे के साथ हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि अगर आपको एक दूसरे के बारे में सब कुछ नहीं पता ना, और इसमें आप कुछ छुपा रहे हैं किसी के कहने पे, तो फिर वो सही चीज नहीं होती। क्योंकि वो सही नहीं, क्योंकि कहीं और से पता चल जाएगा तो। प्लस यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रस्ट करना, अगर आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसमें ट्रस्ट नहीं है, देन दैट इज द वर्स्ट थिंग। लेकिन ट्रस्ट भी ट्रांसपेरेंसी से आता है ना, क्योंकि अगर आप वो चीजें रखेंगे खुद, अगर उसको कोई चीज कहीं और से पता चलेगी जो आपने नहीं बताई होगी, तो उस पे ही इफ यू आर सिटिंग इन अनदर कंट्री एंड यू आर थिंकिंग कि ओ गॉड, वो किससे टेक्सटिंग कर रहा होगा, वो किससे बातें कर रहा होगा, तो ये इसके उसके दुबई जाने पर आप पाबंदी लगा सकती हैं कि वो दुबई क्यों जा रहे हो भाई। ये बिल्कुल जायज है, लेकिन हाँ बता सब देना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दुबई तो मैंने जाना ही छोड़ दिया, दुबई तो मैंने जाना ही छोड़ दिया। दुबई जाएंगे ना दोनों अब साथ। Anyways, so the next question is how did your relation start? यार जैसे कोई भी अरेंज मैरिज स्टार्ट होती है उसी तरह से। मतलब किसी ने कहा कि एक लड़की है, उससे मिलने आप, बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से, सुगर है, रोटी गोल बनाती है। वो तो अब पता चल रहा है।
कि कितनी सुघड़। ओके गाइस, सो द कैमरा हैड स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग, आई डोंट नो बट एनीवेज। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है मेरे पास कि आपने क्लाइंट्स लेने छोड़ दिए हैं, अब आप क्लाइंट्स लेंगी या नहीं लेंगी। सो दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लाइंट्स का सीन ये है कि अभी इसका आंसर नहीं दिया जा सकता बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ कोरोना एंड एवरीथिंग। तो जैसे ये एंड होता है तब इंशाल्लाह हम लोग मैं लाजमी क्लाइंट्स लेना चाहूँगी यहाँ पर लाहौर में भी, बट आई जस्ट वॉन्ट द सिचुएशन टू एंड और सब चीज़ें अच्छी हो जाए इंशाल्लाह उसके बाद। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाहौर और कराची। This is a very tough question. I love Karachi but I love Lahore as well. क्योंकि जो चीज़ें लाहौर में होती हैं वो कराची में नहीं होती, जो चीज़ें कराची में होती हैं वो लाहौर में नहीं होती। तो how can you hate either of them, right? Right. Okay. Who is more self-obsessed? बिल्कुल भी नहीं। You are. No. You keep looking at yourself in the mirror. यार वो तो क्योंकि मैं अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर रहा हूँ। That was a heavy word. नहीं, कौन कहता है, क्या कहते हैं जो मैं तो स्टार हूँ और ये वो। मैं तो ये कभी भी नहीं कहती स्टार हूँ। मजाक में होता है, लेकिन सीन क्या होता है मैंने कभी कहा है, हालांकि मैं हूँ भी नहीं ना, लेकिन मेरा भाई सब देखा। Have you ever tried to put some makeup on Bilal, and also how does he react to your makeup obsession? पहले सवाल का आप जवाब दे दें। हाँ, मेकअप मैंने बिलाल पे एक दफ़ा ट्राई किया है। मैंने बिलाल की बिकॉज बिलाल हैज़ लाइक दीज ब्यूटिफुल बिग आईज, सो आई ट्राइड स्मोकी आईज ऑन हिज आईज एंड ही वाज लुकिंग क्यूट। हाँ, अब बताओ। यार मुझे दुआ के जो मेकअप ऑब्सेशन है उससे कोई बेसिकली इशू नहीं है, लेकिन हाँ बस मुझे एक चीज़ से इशू होता है कि आप तैयार होकर बैठ जाते हैं, टाइम गुजरता रहता है, आपको जो टाइम दिया जाता है, मतलब मुझे सिर्फ उस चीज़ से इशू है कि मैं तैयार होकर बैठा हुआ 2 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन अब मुझे हल्के हल्के करके आदत होती जा रही है, तो मुझे पता होता है कि अब दुआ रेडी होना शुरू हुई है और मुझे 2 घंटे बाद रेडी होना है। तो अब मुझे 2 घंटे लेते तैयार होने में? 2 घंटे नहीं, लेकिन वही 1 घंटा 55 मिनट। That was rude. No, it was rude. यार पपियों में कौन सा रूड होता है? ये तो पपी की है, रूड कौन सा? Anyways, so उसके बाद शादी से अब तक कितनी फाइट्स हो चुकी हैं? 2। हाँ मतलब वो तो ऐसे वो तो चलता रहता है यार, मतलब बेड पे लीची गिरा दे, मेरे लीचियों के पीछे पड़ गए ना। Who fights more? Who fights more? Who fights more? Who fights more? मैं तो लड़ती नहीं हूँ। मैं तो हुई बहुत बुरी। यार तुम तो क्यूट हो, क्यूट लड़ाई होती है हमारी, ऐसे नहीं होता क्यूट वाली। Yeah, right. Okay. Who is more compromising? यार compromising. Let's end this question right here. When is your प्लीज ऐसे सवाल ना पूछा करें जिससे बाद में लड़ाइयाँ हो। When is your वलीमा? नहीं, मैं ये कह देता हूँ, चले दुआ बहुत अच्छी है, दुआ हर तरीके से क्यूट है, और नहीं हम दोनों डिफरेंट टाइमिंग्स पे एक दूसरे को समझते हैं, और मतलब किसी एक को गुस्सा है तो दूसरा ठंडा हो जाए। वैसे तो मैं हर दफा ठंडा हो जाता हूँ, लेकिन हाँ, when is your वलीमा happening? किसी को पता तो हमें भी बता दे। सही बात है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अभी वलीमा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए दुआ की फैमिली को भी ट्रैवल करना पड़ेगा ना, एंड ट्रैवलिंग इज नॉट इजी राइट। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर हम एक इवेंट करें और दुआ के घर से कोई भी ना हो। ऐसे तो अब दुआ की कोई हैबिट जो थोड़ी सी इरिटेटिंग हो। You better answer this question very carefully, नहीं because इसके consequences कुछ भी हो सकते हैं। गाइस पहले मैं बताने लगा था, लेकिन अब दुआ क्या लगती दुआ इज वेरी लवली। बताओ क्यूट। बाकी रात लाइट बंद थी, हम लोग एक मूवी देख रहे थे और लीची बेड में घूम गई थी। आई थिंक इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए द लीची टॉक। यार मैंने खुद अभी हमारी शादी को 1-1.5 हफ्ता हुआ है और इतनी लीची के साथ मेरा मोहब्बत हो गई है, मतलब रोजाना रात को बेड पे 3 चीजें होती हैं, मैं, दुआ और लीची।
इसका मेरे पास एक सबूत है, रात की खाई भी लीची। देख रहे ऐसे नहीं मैं बात करता। Actually show that to everybody. यार ऐसा लग रहा था कि मैं किसी चीज को काफी वो कर रहा हूँ, बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। Okay, anyways. अब सुबह को ये प्लेटें नीचे कैसे जाएंगी यार, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। वो भी फिर मैं लेके कभी भी मैं वो हमारे घर में एक आपा जी हैं, उनको कह देते हैं पहले इनको नीचे ले जाए। आप दोनों की स्माइल इतनी सेम क्यों है? दुआ को मुझे इस तरह तंग करने में बहुत मजा आता है। आप दोनों में से पहले करो ना, आप दोनों में से पहले किसको मोहब्बत हुई थी? मोहब्बत हम दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ना वक्त के साथ जो है वो खुद डेवलप किया है। ऐसा नहीं था कि बस वो एक दफा देखा, मतलब इस तरह नहीं था कि आप लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करती हैं, मैं पीछे से घूम के। That was a very funny dialogue, by the way. Anyways, are you both cousins? कजन? एक मैं ये अभी we need to talk. नहीं, हम दोनों कजन नहीं है, लेकिन बचपन में एक शादी के अंदर हम दोनों मिले थे। मतलब ऑब्वियसली ये हम लोग के फैमिली रिलेशंस हैं मगर काफ़ी दूर के, सो थिंग्स आर लाइक दैट, बट वी आर नॉट कजन्स, वी आर नॉट रिलेटेड उस तरह से एट ऑल, और वी आर नॉट कजन्स. Don't call us cousins because we are not. Okay, so the next question is आपकी रुखसती भी हो गई? Yes, रुखसती भी हो गई तब. Okay, इतने चुपचाप शादी क्यों? इसका मैं जवाब दे चुकी. हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? Like seriously, ये कोई मतलब ये इसको कहते हैं दुखती रख पे हाथ रखना, हाँ, या जले पे नमक छिड़कना, क्योंकि इस वक्त की सिचुएशन में कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता इंसान. बेस्ट क्वालिटी इन दुआ. स्टार्ट करें क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, बहुत है ना. दुआ की बेस्ट क्वालिटी ये है कि सोचना पड़ रहा है. नहीं यार, दुआ बहुत अंडरस्टैंडिंग है. दुआ चीज़ों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझती है. कोई बात अगर समझाओ, ऑल्दो स्टार्ट में गलत बात करेगी, लेकिन जब समझाओ तो समझ जाती है माशाल्लाह से. तो ये अच्छाई है बुराई है? नहीं, बात को समझ जाना भी बड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें समझाओ वो समझते नहीं. बेस्ट क्वालिटी इन बिलाल में है ना बेस्ट क्वालिटी क्या? The best thing about him is that he loves the people around him इतना ज़्यादा that बहुत ज़्यादा, मतलब he is so loving, so damn loving. You guys can't even imagine, and so caring. और ओवर एक्टिंग की तो दुकान है आदमी. You look damn perfect with each other. Stay happy. Lots of love. Thank you so much. Okay. Bilal and you husband wife? Yes or no? ये कैसा सवाल है? Yes or no? Yes, obviously. Love or arrange? Arrange marriage, definitely. Okay guys, so this was it for the video. सारे questions हमने answer कर दिए. Most of them हमने answer कर दिए. Questions बहुत थे, लेकिन I shortlisted the questions जो कि बहुत सारे एक जैसे थे, clash हो रहे थे, वो सब चीज़ें. आपको और भी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम दोनों की. If you guys want us to start vlogging, let us know in the comment section down below. We will surely do that. And I love you guys a lot. We love you guys a lot. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. बाहर जाएं तो ग्लव्स और मास्क घर में बिल्कुल ना भूलें, बड़ी गलत बात हो जाएगी. अपना ख्याल रखें ताकि दूसरों का भी आप ख्याल रख सकें. एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग? मैं हर इंसान को कहना चाहूँगा बहुत अच्छा टाइम है शादी का. सही बात है,
क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से अल्लाह ताला आपको मौका दे रहा है शादी करने का। घर से 30-40 लोग बुलाओ, छोटा सा सेटअप। और जैसा हमने एक्सपीरियंस किया है अपनी शादी के टाइम पे, हमें ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तब भी लोगों को इसी तरह छोटे लेवल पे शादियां करनी चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग थे जिनको हमने भी मिस कराया, मतलब, और वो थोड़ा सा हमसे नाराज हुए, लेकिन जिस दिन आपकी शादी हो जाती है अगले दिन कोई you don't even care about anything, and the best part about this is that आप सिर्फ उन लोगों को बुला जब आप शॉर्टलिस्ट करते हैं ना मेहमानों को, तो आप उन लोगों को बुलाते हैं सिर्फ जिनका आपको पता होता है कि वो एक पॉजिटिविटी लेके ही आएंगे। हमारा एक इवेंट भी नहीं हुआ, कहाँ हमने प्लान किया था कवाली नाइट, मेहंदी, ढोल की, ये वो, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इन इवेंट्स पे जिसमें आपकी शादी होती है लेकिन दूसरे लोग एंजॉय करके चले जाते हैं। सिंपली हम लोग गए हैं, 8:30 बजे निकाह हुआ है, 9:30 बजे खाना खुला है, 10:30 बजे हम दोनों वहाँ से चले। रुखसती 2-2.5 घंटे में हमारा इवेंट जो है खत्म हो। मतलब मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि शादी इतनी सिंपल हो जाएगी। And that is the best way you can get married, and you can save so much of money you have no idea about it. Like मुझे अभी लगता है कि अगर हम नॉर्मल शादी करने के लिए गए होते तो आई थिंक हमारे लाखों रुपए आप जितना ही उसको छोटा करें मगर वो छोटा नहीं हो पाता है। So yeah, this was our experience and we loved how we got married. It was a small ceremony, it was amazing, and yeah, I hope आप हमारे experience से कुछ सीखें, and so take care of yourself, you guys, and we love you, and we'll keep coming on this channel, and we'll come and make a lot of content for you guys, different things, fun things, and yeah, that's about it. So take care of yourself, you guys, and subscribe to my channel before you leave if you haven't subscribed.